Hello my dear students, welcome back to your YouTube channel Tech English. Today I will teach you first chapter from the book Movements, that is The Lost Child, which is published on 1934 and it is written by the very famous Indian English writer Mulk Raj Anand. So this story is about a child. In this story the writer explores the psychology, the mindset of the child when he is separated from his parents in the fear. So this story highlights a child's love for his parents. A child goes to fair with his parents. He is very excited, he is very much happy and he wants to get everything that he sees in the fair, whether it is sweet or toy or the flower. So he is attracted by all the things that he sees in the fair and he also wants to buy those things. But the moment he gets separated from his parents, the interest, the attraction in the things that he sees in the fair is gone, because he is left behind due to attraction of the things in the fair. So when he realizes that his parents are not with him and he is lost in the fair, he starts crying and he wants only one thing, that is to be reunited with his parents. One man tries to console him by giving him the things that he wanted earlier, but now the interest is gone. He only wants his parents and he keeps on crying. So in this story the ending is not clear whether he meets or not, but it is a universal theme in which it is revealed that the child does not want anything except his parents. It means that our parents are the most valuable person in our life. So this was the introduction of the story. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके. सो नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी. सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज Mulk Raj Anand, who was born on 1905 and he was died on 2004. He was one of the writers who incorporated Punjabi and Hindustani idioms into English. मीन्स वो उन लोगों में से एक, उन राइटर्स में से एक है जिन्होंने इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश स्टोरीज़ में पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स को भी इंक्लूड किया, मुहावरों को इंक्लूड किया. He was a recipient of Padma Bhushan and Sahitya Academy Award, which are well known and you can say the most prestigious award of India. So this was about author. Now let's see the theme of the story. And I know very well, I'm sure that you will relate the story to you also, because it is the story about a child and his parents. The theme of the story is the close bond that children share with their parents. The lost child forgets all about his desires and yearns deeply for his parents when he fails to find them. Everything else loses its significance and the only thing that matters is his wish to be reunited with his parents. The story is about child's aspirations, demand and realization. तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे, एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के साथ क्या बॉन्ड होता है वो हम देखेंगे. और स्टोरी में क्या होता है, एक चाइल्ड होता है जो फेयर में, मेले में खो जाता है. अब वो जब मेले में जाता है तो उसके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो उसके अंदर वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. लेकिन जैसे ही वो मेले में खो जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे केवल अपने पेरेंट्स चाहिए. अब उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, स्वीट्स, स्नेक चार्मर का म्यूज़िक, सब कुछ उसे ऑफ़र किया जाता है जो वो पहले चाहता था, लेकिन अब उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. ही जस्ट वांट्स टू बी reunited with his parents. So in this story we will see about a child's aspiration, his demand and his realization that the only thing that is the most important in his life is his parents. So this is the theme of the story. I hope that you will relate this theme to your life very well. So now let's see the explanation of the chapter line by line. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock cars. So अब ये setting कब की है, स्प्रिंग की है, फेस्टिवल है. तो जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो बहुत सारी खुशियाँ चारों तरफ होती हैं, मेले भी लगते हैं
तो अब क्या है, अब जब ठंड के बाद जब स्प्रिंग आता है, तो ठंड जब होती है तो सब लोग अपने घर में होते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, लोग अपने घरों से बाहर निकले। इमर्ज मतलब केम आउट। तो अब जब ठंड ख़त्म हुई, स्प्रिंग का मौसम आया, तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्लैड ह्यूमैनिटी, उन्होंने अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहने हैं और बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकले। विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स मतलब क्या हुआ, विंट्री शेड्स यहाँ पे विंटर के लिए आ रहा है। एंड नैरो लेन्स एंड एलीज मतलब जो पतली पतली जो गलियां हैं उनके लिए आ रहा है। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. तब लोग कैसे मेले में जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग हॉर्सेस पे राइड कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं किसमें, बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स में कुछ लोग बैठ के आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग में हमें राइटर क्या बताते हैं, स्टार्टिंग में हमें राइटर सेटिंग बताते हैं कि स्प्रिंग का सीज़न है और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि विंटर ख़त्म हो चुकी है और अब लोग मेले में जा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यहाँ पे आता है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। अब इन्हीं सब लोगों के बीच में एक लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है जो अपने फादर और मदर के साथ जा रहा है और वो इतना खुश है कि बीच बीच में अपने फादर के पैरों के बीच होके जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स, ब्रिमिंग ओवर मतलब क्या होता है, उसकी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा छलक रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस की यहाँ बात की जा रही है। ब्रिमिंग ओवर किस लिए वर्ड आते हैं, स्पेशली होता है जब किसी वेसल में, किसी ग्लास में वाटर हो और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, मतलब जितना स्पेस है उससे ज़्यादा जब होता है, जब छलकने लगता तो उसको बोलते हैं ब्रिमिंग ओवर। तो यहाँ पे चाइल्ड के हैप्पीनेस के लिए बात की जा रही है। तो ऐसा आपके भी साथ भी हुआ होगा, जब आप छोटे रहे होंगे, आप भी जब किसी ऐसी जगह जा रहे होंगे जहाँ आपका बहुत मन हो, लाइक फेयर या किसी भी ऐसी जगह, तो वहाँ पे आपको भी सेम एक्सपीरियंस फील हुआ होगा, सेम फीलिंग आपकी रही होगी, आपको भी बहुत खुशी फील हो रही होगी जब आप गए होंगे। हो सकता है आपको वो समय याद हो या हो सकता है ना याद हो, बट सेम चीज़ इस चाइल्ड के साथ भी हो रहा है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब क्या हो रहा है, जब बच्चा मेले में जा रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो मेले में देख रहा है तो उनसे अट्रैक्टेड हो जा रहा है। जैसे कि वो टॉयज़ देख रहा है, बहुत सारे लाइन में लगे, शॉप पे लाइन में टॉयज़ लगे, तो बच्चा उन्हें देख के अट्रैक्ट हो जा रहा है, वो बार बार वो पीछे छूट जा रहा है अपने पेरेंट्स से। तो अब उसके पेरेंट्स से क्या बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, कि बेटा यहाँ पे आ जाओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब जैसे ही बच्चे ने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से भागा भागा अपने पेरेंट्स के पास गया। जैसे कि उसकी जो फीट है, ऐसा लग रहा था अपने पेरेंट्स की कॉल के लिए बहुत ओबीडियंट है, मतलब जैसे ही पेरेंट्स ने उसको बुलाया वैसे ही तुरंत भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला गया। बट हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग ऑन मतलब क्या होता है, लुकिंग एट, और रिसीडिंग मतलब मूविंग अवे। अब जैसे क्या होता है कि जब आप आगे जा रहे हो लेकिन जो चीज़ें हैं वो पीछे चली गई, तो अब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे लगता है कि वो मूव हो रही हैं। तो यहाँ पे रिसीडिंग मतलब किसके लिए आया है, जो टॉयज पीछे चले गए उसके लिए आ रहा है। तो अब क्या हुआ, अब चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स की बात मानी, वो तो आगे बढ़ गया लेकिन उसकी नज़रें कहाँ हैं, उसकी नज़रें अभी भी उन टॉयज पे है जो पीछे चले गए हैं। एज यू कैन सी द इमेज, as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. अब जब वो बच्चा वहाँ आ गया जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए रुके थे, उसके लिए वेट कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, उसके मन में जो डिज़ायर थी, क्या डिज़ायर थी, इन टॉयज़ को लेने की, वो अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाया। सप्रेस मतलब क्या, कंट्रोल नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया अपनी डिज़ायर को। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आई, लेकिन उसे बहुत बेहतर तरीके से पता था, क्या पता था, कि अगर वो डिज़ायर करे, एक्सप्रेस करेगा, अगर वो डिमांड करेगा तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, तो यहाँ पे ओल्ड वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, मीन्स इसके पहले भी इस चाइल्ड के साथ हो चुका है कि उसने कुछ एक्सप्रेस किया है, कुछ डिमांड किया है और उसके पेरेंट्स ने बहुत कोल्डली रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए यहाँ पे आया है।
I want that toy, he pleaded. Pleaded means क्या होता है? Requested. His father looked at him red-eyed. In his familiar tyrant's way, strict and harsh manner. अब क्या होता है? अब बच्चा क्योंकि अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाया, सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है अपने पेरेंट्स से, क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो टॉय चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Tyrants क्या है यहाँ पे? Strict and harsh manner. Tyrant मतलब क्या होता है? तानाशाह. लेकिन यहाँ पे किस लिए आया? Strict and harsh manner. जैसे फादर होते हैं, नॉर्मली फादर जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो यहाँ पे वही दिखाया गया है. एक ही यूनिवर्सल स्टोरी है, हर कोई इससे कोरिलेट कर सकेगा. तो अब जैसे ही बच्चे ने डिमांड करी तो उसके फादर उसको बहुत गुस्से से देखने लगे, जिससे क्या पता चल रहा है कि उसके फादर उसको कुछ भी बाय करके परचेज करके नहीं देंगे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब उसकी जो मदर है वो थोड़ा बच्चे को देख के, बच्चे की डिमांड देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो गए. तो अब उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करी. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. अब क्या हुआ? क्योंकि दिन बहुत अच्छा था और सब बहुत अच्छे मूड में थे, तो उसकी मदर भी क्या सोची कि अपने बच्चे का वो ध्यान बटाए. उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे का ध्यान बटाने के लिए क्या कहा? लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, कि बच्चे देखो सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड. अब क्या किया मदर ने? क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहे थे उसके एक तरफ फील्ड था, तो अब उन्होंने क्या दिखाया कि देखो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये देखो. और जो कैसे लग रहे थे? जैसे कि जो गोल्ड होता है, जब गोल्ड मेल्ट कर दिया जाता है तो उसी तरह मस्टर्ड के फील्ड लग रहे थे, सरसों के जो खेत होते हैं वो. तो अब उन्होंने इसलिए किया ताकि बच्चे का ध्यान अब उस पर चला जाए, उन फील्ड्स पे चला जाए और वह भूल जाए, टॉयज़ के बारे में भूल जाए. तो ये मस्टर्ड फील्ड जो थे वो माइल्स तक, मीलों दूर तक फैले हुए थे. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Dragonflies क्या होती हैं? ये. तो अब बहुत सारी dragonflies जो थी, जो कि पर्पल जिनके विंग्स थे, पर्पल कलर की ड्रैगन थी, वो सब उड़ रही थी. कहाँ पे उड़ रही थी? ये मस्टर्ड फील्ड के ऊपर उड़ रही थी. Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब क्या हो रहा था? इन फील्ड्स के ऊपर बटरफ्लाई भी थे, ब्लैक बी भी थे, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग नेक्टर से जो जूस होता है, जो रस होता है फ्लावर का, उसको लेते हैं. तो अब क्या हो रहा था? जो ड्रैगन फ्लाइज थे, क्योंकि बहुत ग्रुप में थी, और ब्लैक बीज और बटरफ्लाई क्या थे? लोन मतलब लोनली. तो अब बहुत सारे ग्रुप की जब इंसेक्ट्स हैं, वो लोनली इंसेक्ट्स का जब रास्ता काट रहे, तो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो उनका रास्ता इंटरफेयर करे, वो उनकी फ़्लाइट को इंटरफेयर कर रहे हैं. तो बच्चा इन सबको देख रहा था. अब चाइल्ड क्या होते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं. तो इसी तरह इस बच्चे के साथ भी हुआ. तो अब वो क्या करने लगा? जैसे ही बच्चे ने देखा उस सबको, तो क्या हुआ? The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest. अब क्या होने लगा? जैसे ही बच्चे ने उसको देखा, उन सभी चीज़ों को, तो चाइल्ड उनको फॉलो करने लगा और बहुत ध्यान से देखने लगा. Till one of them would still its wing. Still its wing means stop flying. अब जब तक कि उनमें से कोई एक बटरफ्लाई उसके हाथों में शांत से बैठ नहीं जाती थी, उसके आसपास रेस्ट नहीं करने बैठ जाती थी, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. तो क्या करता था? वो बहुत ध्यान से देखता रहता था, और जैसे ही कोई भी बटरफ्लाई बैठ जाती थी तो वो क्या करता था? उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था. तो ऐसा आपने भी किया होगा. लेकिन होता क्या है? जब तक आप बटरफ्लाई शांत होकर बैठती है, आप तब तक वेट तो करते हो, लेकिन फिर जब उसके बाद पकड़ने की कोशिश करते हो तब क्या होता है? But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. अब क्या होता है?
लेकिन जैसे ही बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है, जब जैसे ही बच्चा ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता था अपने हाथ में, जो बटरफ्लाई थी, जो इंसेक्ट्स थे, वो क्या होते थे, उड़ जाते थे। फ्लटरिंग फ्लैपिंग, अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो हवा में उड़ जाते थे। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। अब अगेन जो मदर है वो उसकी आगे चली गई और बच्चा जो है वो इंसेक्ट्स को ही देखता रह गया, वो बटरफ्लाइज को और जो ड्रैगन फ्लाइज है उनको वो देखता रह गया, वो सारी चीज़ों को भूल गया, वो टॉयज़ को भूल गया, अब उसका माइंड उसमें लग गया। तो अब उसकी मदर ने दोबारा से, तो कॉशनरी मीन्स क्या होता है, एक वार्निंग में, या आप कह लें एक ऐसी कॉल जिसमें थोड़ी सी चिंता है, वरी है। ओके, तो अब उसकी मदर क्या बुला रही, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बेटा फुटपाथ पे आ जाओ। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स सी फर्दर स्टोरी। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। अब क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है तो वो उनकी तरफ भागते हुए जाता है। Walked abreast मतलब साइड बाई साइड। ओके, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो अब क्या होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स के पास बहुत हैप्पीली चला जाता है और उनके साथ साइड बाय साइड चलता रहता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो अगेन पीछे रह जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड मतलब वो तुरंत से थोड़ी देर में ही पीछे रह जाता है। बिकॉज नाउ द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, क्योंकि अब क्या हो रहा है, रास्ते में कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ वॉर्म्स हैं जो कि फुटपाथ पे उसे नज़र आ रहे हैं। दैट वर टीमिंग आउट मतलब कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स। तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो वॉर्म्स हैं, वो भी अब निकल रहे हैं, अपनी हाइडिंग प्लेसेस से निकल रहे हैं। किस लिए निकल रहे हैं, टू एन्जॉय द सनशाइन। तो अब क्या हो रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो चाइल्ड है वो नेचर लवर है, क्योंकि पहले वो मस्टर्ड फील्ड को देख रहा है, देन ही वॉज फैसिनेटेड टू सी द बटरफ्लाई, द ड्रैगन फ्लाइज, एंड नाउ अगेन ही सीज some insects and worms and again he is left behind from his parents। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द चाइल्ड इज अ नेचर लवर। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप आंसर करेंगे। वन मोर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड नोटिसेस ऑन हिज वे टू द फेयर। तो अब उसने फेयर पे जाते हुए, मेले में जाते हुए, तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मस्टर्ड फील्ड देखे, उसके बाद उसने क्या देखा, बटरफ्लाइज देखा, ड्रैगन फ्लाइज देखा। ओके, आप क्या वो देख रहा है, लिटिल इंसेक्ट्स देख रहा है, वॉर्म्स देख रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बच्चा मेले में क्या देखता और मेला जाते वक्त, फेयर जाते वक्त क्या देखता है, वो दोनों के आंसर अलग हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अभी आप इतना चीज़ें याद रखिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them। अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स अब कहाँ बैठ गए हैं, जो ग्रोव होता है। ग्रोव क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, कुछ ट्रीज का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं ग्रोव। तो अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स अब कुछ पेड़ों के झुंड में उनकी छाँव के पास बैठ गए, जहाँ पे एक कुआं था और कुएं के एज पे, यहाँ इसे बोलते हैं एज, अब इस पे वो बैठ गए। तो वहाँ पे बैठे वो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। तो बच्चे ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो तुरंत उनके पास भागते हुए चला गया। लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था, अगेन क्या हुआ, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव। तो जैसे ही बच्चा ग्रोव में एंटर किया, क्या हुआ, उसके ऊपर फूलों के यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर जो हैं उनकी ऐसे लगा बारिश होने लगी। अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स। अब वो अपने पेरेंट्स को भूल के क्या करने लगा, जो उसके ऊपर पेटल्स गिर रहे थे, जो फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही थी, उनको अपने हाथ में कलेक्ट करने लगा, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उसने डव्स के बोलने की आवाज़ सुनी। तो जैसे ही उसने डव्स के बोलने की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हुए चला गया। क्या चिल्लाते हुए, द डव द डव। और अब उसका ध्यान
इन फ्लावर्स की पेटल से हट के किस पे चला गया, डव पे। तो जैसे ही उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो उसके हाथों से पेटल्स थी जो उसने हाथों में अपने कलेक्ट करी थी वो उसके हाथों से गिर गई। मतलब अब उनको पेटल्स को भूल गया और अब उसका ध्यान किस पे चला गया, इन डव्स पे। तो अब नेक्स्ट थिंग्स वो क्या देखता है मेले जाते वक्त, फेयर पे जाते वक्त, वो देखता है फ्लावर्स को, कोइंग ऑफ डव्स को, डव्स को वो देखता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers around the banyan tree। वाइल्ड कैपर्स क्या होता है, अब जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो थोड़ा सा स्किपिंग वे में जंप करते हैं। अब प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट मतलब वो तो स्किपिंग करते हुए वो जब चलते हैं तो उसे बोलते हैं वाइल्ड कैपर्स। तो आपने भी ऐसा किया होगा। तो अब क्या होता है, वो अगेन अपने बच्चे को बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, क्योंकि अब बच्चा उनके पीछे थोड़ा सा उछल उछल के स्किपिंग के मूवमेंट में वो चल रहा था। किसके चारों तरफ, बैनियान ट्री के। एक बैनियान ट्री था, बरगद का ट्री था, उसके चारों तरफ वो कूद रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स के पास हो गया, बच्चे को पेरेंट्स ने साथ में लिया और वो अब कहाँ चले गए, एक पतली सी नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, मतलब एक पतली सी रोड से होते हुए वो कहाँ जाने लगे, फेयर की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो वो जो फेयर का रास्ता था वो मस्टर्ड फील्ड से होकर गुजरता था, मतलब उस रास्ते में सरसों के खेत भी थे। एंड दे नियर द विलेज द चाइल्ड could see many other footpaths full of throngs। throngs means large number of people। तो जैसे ही वे लोग गाँव के पास आए, बच्चा देख सकता था, क्या देख सकता था कि बहुत सारे और भी रोड से, बहुत सारी और भी रास्ते थे जिनमें a large number of people थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। converging to the whirlpool of the fear and felt at once repelled। अब क्या हुआ, बच्चे ने देखा कि बहुत सारे लोग आ तो रहे हैं दूसरे रास्ते से, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जा रहे हैं, जब वो गैदर हो जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जो फेयर में व्हर्लपूल बन जा रहा है, मतलब एक भूल भुलैया टाइप का बन जा रहा है। एक बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बच्चा अब कन्फ्यूज हो जा रहा है क्योंकि वो इतनी भीड़ को देख रहा है अचानक से। felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और बच्चा जब देख रहा है तो थोड़ा सा वो रुक जा रहा है क्योंकि इतनी भीड़ को वो देख रहा है अचानक से। और पहले तो एक नज़र जब देखता है तो वो रुक जाता है एक पल के लिए, लेकिन फिर जब वो मेले में एंटर करने लगता है देन ही वॉज फैसिनेटेड। जब वो मेले में एंटर करता है तो वो अट्रैक्टेड हो जाता है उस माहौल को देख के, क्योंकि अब उस मेले में वो भी एंटर कर रहा है। So now what is the feeling when the child was entering the fair? The child was at once repelled। पहले तो वो repelled हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन जब वो एंटर करने लगता है मेले में तो वो फैसिनेटेड होके अंदर जाने लगता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। A sweet meat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। तो जैसे ही बच्चा मेले के अंदर जाता है तो अब क्या होता है, उस मेले के एंट्रेंस पे ही एक स्वीट मीट सेलर है जो कि हॉक कर रहा है। हॉक मतलब वो शाउट करके तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो अब उसकी शॉप कहाँ पे लगी है, उस मेले के एंट्रेंस के कॉर्नर पे लगी है। And a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। अब यहाँ पे क्या बोला, आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स किस लिए बोला है, जो मिठाई बनी हुई है तो बहुत कलर की है, डेकोरेटेड है सिल्वर और गोल्ड से, जो बनावट है उसके लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर वर्ड यूज़ हुआ है। तो अब उस स्वीट मीट सेलर की शॉप पे बहुत सारी क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं और उसके काउंटर पे लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं और उन स्वीट्स को ख़रीदने के लिए। कैसी स्वीट्स हैं, जो कलर्ड हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे कि जो स्वीट्स होती है उस पर सिल्वर या गोल्ड का एक कवर लगा होता है, तो यहाँ पे उन स्वीट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। The child stared opened and his mouth watered for the burfi that was his favorite dish।
फेवरेट स्वीट। अब क्या होता है, जब बच्चा उस मिठाई को देखता है, स्वीट को देखता है, तो वो देखने लगता है, स्टेयर करने लगता है। स्टेयर मतलब आप जब एक चीज़ को कंटिन्यू देख रहे हो, ठीक है, तो वो देख रहा है, एकदम अवाक है वो, और उसके माउथ में वाटर हो रहा है, मतलब उसका मन हो रहा है खाने को बहुत ज़्यादा। फॉर द बर्फ़ी, क्या खाने का मन हो रहा है उसका? बर्फ़ी खाने का मन हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट है। तो यहाँ पे अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि आप भी जब जाते हो मेला, जब गए थे आप कभी जाते हो, तो आपको भी जब स्टॉल में ऐसी सारी चीज़ें देखते हो तो आपको भी मन होता है, लेकिन आपके पास मनी होता है तो आप खुद परचेज़ कर लेते हो, खुद बाई कर लेते हो। लेकिन इस बच्चे के पास तो मनी है ही नहीं, तो वो कैसे बाई करेगा? तो अब इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने एक बार डिमांड करी थी तो उसे अपने फादर का गुस्सा देखना पड़ा था। तो अब इसलिए वो शांत होकर एकदम देख रहा है चीज़ों को। चलिए देखते हैं वो आगे क्या देखता है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर मतलब क्या होता है? धीरे से बोलना। ओके, ऐसे बोलना कि अगले को सुनाई ना पड़े। तो अब उसके मन में आ रहा है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। अब वो धीमे से क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसकी नहीं सुनेंगे। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मतलब पे अटेंशन, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन उसे पता था, उसे ये अंदाज़ा था कि अगर वो रिक्वेस्ट करेगा, अगर प्ली मतलब वो रिक्वेस्ट करेगा, तब भी उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कह देंगे कि वो तो ग्रीडी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी बार वो चीज़ों की डिमांड करेगा उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे जब वो बर्फ़ी के लिए बोलता है तो उसको क्या लगता है, वो क्या रीज़न देता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो बहुत लालची है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है बिना कुछ बोले। अब फ्लावर सेलर हॉग, अब वो क्या देखता है, अब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक फ्लावर सेलर है जो फ्लावर्स को सेल कर रहा है, वो भी चिल्ला रहे, क्या कह रहा है? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो जैसे ही बच्चा आवाज़ सुनता है फ्लावर सेलर की, हॉकिंग की, क्या होता है? द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। इरेसिस्टिबली मीन्स बिना रुके हुए। ऐसा लग रहा था कि बच्चा खिंचा हुआ चला जा रहा है उस आवाज़ की तरफ, जहाँ पे वो फ्लावर सेलर गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को सेल कर रहा है। तो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर क्या है? माला। और गुलमोहर क्या होते हैं? ये गुलमोहर के फ्लावर्स होते हैं और इनकी माला बनाई जाती है। तो अब वही जब बच्चा देखता है तो वो खिंचा हुआ चला जाता है। कहाँ जाता है? टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप। हीप मतलब क्या होता है? ढेर। तो अब वो उस बास्केट की तरफ चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ढेर के ढेर रखे हुए थे। एंड व्हेन द चाइल्ड सॉ द फ्लावर्स ही हाफ मर्मर्ड, मतलब उसने धीरे से बोला, बुदबुदाया। क्या बोला? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि जब वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करेगा तो उसके पेरेंट्स उसको बाय नहीं करके देंगे। क्या बोलेंगे? कि ये फ्लावर्स तो चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। तो अब उसने स्वीट वाली बात क्यों नहीं करी थी? उसने स्वीट इसलिए डिमांड नहीं करी थी क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे कि यू आर वेरी ग्रीडी। और फ्लावर्स के लिए क्या बोलेंगे? कि फ्लावर्स तो चीप हैं। तो ये आपको ये रीज़न याद रखनी है। अब वो नेक्स्ट क्या देखता है? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो मेले में क्या देखता है? अब देखता है वो एक मैन को जिसने एक पोल पे बहुत सारे कलर्ड बलून्स लिए, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स। द चाइल्ड वॉज सिंपली करीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो अब चाइल्ड क्या होता है? कैरीड अवे मतलब क्या होता है? जब उन बलून्स को देखता है। रेनबो ग्लोरी यहाँ पे किस लिए आया? क्योंकि जो कलर हैं बलून्स के वो बहुत सारे हैं, येलो, रेड, ग्रीन। तो रेनबो में भी 7 कलर्स होते थे, इसलिए यहाँ पे रेनबो वर्ड आया है। तो जब वो बलून्स को देखता है, कलरफुल बलून्स को देखता है, तो वो खिंचा हुआ चला जाता है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉसेस देम ऑल। ओवरवेलमिंग यहाँ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो जब वो उन बलून्स को देखता है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि उसे उन सभी बलून्स को लेना है।
बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये बलून्स बाय करके नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो उनसे कहेगा तो वो क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ टच टॉयज, कि वो ऐसे टॉय से बलून से खेलने के लिए वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो अब छोटा नहीं है। तो इसलिए वो बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया। तो उसने जब मेले में एंटर किया, जब फेयर में एंटर किया, तो उसने सबसे पहले क्या देखा, स्वीट मीट सेलर देखा। उसके बाद उसने क्या देखा, उसके बाद उसने गार्लैंड ऑफ गुलमोहर देखा, और उसके बाद उसने क्या देखा, बलून सेलर को। तो फ्लावर सेलर, स्वीट मीट सेलर, फ्लावर सेलर, और उसके बाद बलून सेलर। तो ये आपको याद रखना है। Now what he saw in the fair, a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब उसने देखा स्नेक चार्मर को जो कि फ्लूट बजा रहा था, टू अ स्नेक, एक स्नेक के लिए फ्लूट बजा रहा था, और जो स्नेक एक बास्केट में कॉइल था। कॉइल मतलब वो ऐसे अपने को रैप करके, बॉडी को रैप करके ऐसे कॉइल करके बैठा हुआ था। और स्नेक का हेड कैसा था, रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्वान की जो नेक होती है वो भी सेम ऐसे ही होती है। तो वो जब फ्लूट को सुनते हैं, जब स्नेक फ्लूट को सुनते हैं तो उनकी हेड जो है एकदम रेज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि स्वान की नेक हो। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देखिए राइटर कैसे कर रहे हैं। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो जब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया इस म्यूज़िक को, जो वाटरफॉल से जो वाटर गिरता है तो उसका जो साउंड होता है उसकी कंपैरिजन की जा रही है उस म्यूज़िक से। तो जब वो म्यूज़िक उस स्नेक के ईयर में जा रहा है जो इनविजिबल है, क्योंकि स्नेक की ईयर तो हमें नज़र नहीं आती, इसलिए यहाँ पे दिया है कि वो म्यूज़िक जब स्नेक के ईयर में जा रहा है, उससे होके गुजर रहा है, तो जो म्यूज़िक है वो कैसा है, जेंटल रिपलिंग। यहाँ पे सॉफ्ट रशिंग साउंड, सॉफ्ट साउंड के लिए यहाँ पे आया जेंटल रिपलिंग। तो जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल की आवाज़ आती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव फील होता है। तो वैसे ही जब ये स्नेक चार्मर उस फ्लूट को प्ले कर रहा है तो स्नेक के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो ये जब म्यूज़िक सुनता है तो अपना हेड ऐसे हिलाता है, तो सेम एज यहाँ पे ये स्नेक के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अब बच्चा स्नेक चार्मर को देखता है तो वो उसका भी म्यूज़िक सुनना चाहता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब क्या होता है, चाइल्ड जो है उस स्नेक चार्मर की तरफ चला जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन उसे ये पता था, क्या पता था, कि उसके पेरेंट्स ने उसको फॉरबिड किया है, मना किया है कि वो ऐसे कोर्स, ऐसे अनप्लीजेंट म्यूज़िक नहीं सुनेगा जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है। तो वो ही जब ये बात याद आती है तो वो फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो जब शुरू में आया तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसने डिमांड करी और उसके पेरेंट्स ने मना कर दी तब से वो सैड हो गया है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखता है बच्चा, राउंड अबाउट, झूला देखता है। फुल स्विंग मतलब जब झूला जो अपनी पूरी स्पीड में होता है तो उसके लिए आता है फुल स्विंग। Men, women and children carried away in whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो जब झूला राउंड होता है, जब झूला खूब तेज से चलता है तो क्या होता है, whirling मोशन होता है। एक whirling मोशन मतलब क्या होता है, ऐसे 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 वो मोशन करता है, ऐसे जो राउंड अबाउट जो झूला ऐसे घूमता है। तो जो लोग होते हैं, जो लोग झूले में बैठे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, श्रीक करते हैं, क्राई करते हैं विद डिजी लावर, क्योंकि जब झूला बहुत तेज़ से घूमता है तो चक्कर आने लगता है। यहाँ पे डिजी उसके लिए आया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत इन्जॉय भी करते हैं। तो जब आप मेले में गए होंगे, जब आपने झूला झूला होगा या देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो लोग झूला झूलते हैं वो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है, वो हंसते हैं। तो सेम चीज़ बच्चा भी देखता है। द चाइल्ड वॉच्ड हिम इंटेंटली, इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से, विद ऑनेस्ट एंड ईगर अटेंशन, बहुत ध्यान से उनको देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत हिम्मत करके वो एक रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से। क्या करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर
अब वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा से, अपने मदर फादर से वो रिक्वेस्ट करता है, बहुत हिम्मत जुटा के वो रिक्वेस्ट करता है क्या, कि मदर फादर प्लीज़ मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, मुझे झूला झूलना है, तो प्लीज़ मुझे झूला झूलने दीजिए। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब ये मोमेंट है जहाँ पे बच्चा खो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा मोमेंट है जब बच्चा खो जाता है। तो वो जब राउंड अबाउट देखता है उसी के बाद बच्चा खो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और ये बच्चा पीछे रह जाता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा ये पूछता है उसको कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो तुरंत पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स तो आसपास कहीं है ही नहीं। उस अहेड ऑफ हिम मतलब उसके आगे चल रहे थे, तो उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स तो आगे हैं ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। अब उसने अपने आसपास देखा, अपने दोनों साइड देखा, तो उसने क्या देखा, वो वहाँ भी नहीं है। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने अपने पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पे भी उनका कोई भी साइन नहीं था। अब बच्चे ने चारों तरफ देख लिया, लेकिन अब उस बच्चे को अपने पेरेंट्स कहीं भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे देखिए ये सीन जो है, जब बच्चे मेले में खो जाते हैं, जब छोटे बच्चे मेले में खो जाते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी यहाँ पे नज़र आती है कि उनके साथ उस समय क्या होता है। तो अब देखते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. अब जैसे ही बच्चे को ये एहसास होता है, ये फील होता है, ये रियलाइजेशन होता है कि वो तो खो गया है, उसके पेरेंट्स तो आसपास है ही नहीं। अब उसके गले से तेज़ से रोने की आवाज़ आती है, डीप क्राई मतलब बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है। और विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मतलब क्या होता है, झटके के साथ। अब वो, क्योंकि वो पहले तो वो बहुत खुश था, वो देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको झूले के लिए परमिशन दे देंगे, तो इसलिए वो उस समय ठीक था, उसका जो मूड था वो थोड़ा सा नॉर्मल था। लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स तो उसके आसपास है ही नहीं, तब उसका साइकोलॉजी देखिए क्या है। तब वो तेज़ तेज़ रोने लगता है और उसकी बॉडी जो है वो एकदम कांपने लगती है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो फिर जहाँ खड़ा था वहाँ से भागने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, और उसको डर लगने लगता है, वो रोने लगता है। मदर फादर, क्यों रोने लगता है, उसे डर लग रहा है कि वो तो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, वो तो खो गया है मेले में। टीयर रोल्स डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर्स। अब क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके जो टीयर्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्स विद फियर। फ्लस्ड मतलब क्या है, रेडेंड, उसका चेहरा लाल हो चुका है। कन्वर्स विद फियर मतलब उसके चेहरे पे डर नज़र आ रहा है, उसका चेहरा डर के कारण एकदम लाल हो गया, रोते रोते लाल हो गया। तो ये चीज़ आप ये इस चीज़ को समझ सकते हैं, जब बच्चे मेले में खो जाते हैं, ये अचानक से कोई खो जाता है। जब आप भी कभी इनकेस छोटे रहे होंगे, इनकेस आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बाई चांस सेपरेट हो गए, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स आसपास नहीं है, तो आपको भी वही सेम फील होता है जैसा कि यहाँ पे इस बच्चे को हो रहा है। तो अब क्या होता है देखते हैं। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर। अब वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया है, वो डर गया इतना ज़्यादा कि वो भागने लगता है, वो दोनों साइड भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। हीदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, हीदर एंड दिदर मीन्स हियर एंड देयर। अब वो सारी डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि उसे नहीं पता है, नोइंग नॉट वेयर टू गो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। मदर फादर ही वेल्ड मतलब रोना, बहुत बुरी तरह से, बहुत तेज से वो रो रहा है अपने मदर फादर को याद करने के लिए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसकी जो पगड़ी है, येलो टर्बन मतलब जो पगड़ी है उसकी, वो ढीली हो चुकी है, वो खुल गई है, और उसके क्लोथ्स जो है मडी हो चुके हैं, मिट्टी में गंदे हो चुके हैं, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा है। अभी तक तो अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा था, तो बहुत आराम से चल रहा था, वो बस चीज़ों को देख रहा था। लेकिन क्योंकि अब उसके पेरेंट्स नहीं हैं आसपास, वो खो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cry suppressed into sobs. अब वो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। अब क्या होता है, वो बार बार इधर उधर भागता है,
और बहुत देर तक जब वो भागता रहता है, बहुत देर जब वो कोशिश कर लेता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने की और उसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, ही स्टूड डिफीटेड, है वो डिफीटेड सा खड़ा हो जाता है। उसको अब समझ आ जाता है कि शायद वो अब अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। और अब वो जो पहले रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, धीरे धीरे उसका रोना जो है सॉफ्ट्स में चेंज हो गया। जब आप बहुत देर तक रोते हो तो बहुत देर रोने के बाद आप क्या होता है, धीरे धीरे रोने लगते हो, जिसे हम बोलते हैं क्या, सुबकियाँ लेना। तो ऐसे ही बच्चा जो है बहुत देर से पहले रो रहा था, जब उसे ऑल ऑफ सडन ही रियलाइज़ होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है, लेकिन वो काफ़ी देर से रो रहा है, तो अभी धीरे धीरे उसके जो क्राइज हैं वो सॉब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब फिल्मी आइज़ क्यों बोला जा रहा है, टीर आइज़, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू हैं। तो अब वो जब देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, थोड़ी सी दूरी पे वो क्या देख रहा है, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं आपस में। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. तो अब क्या करते, वो इन भीड़ में क्या देखने की कोशिश करता है, येलो क्लोज, ब्राइट येलो क्लोज, जो अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोज, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो येलो कलर के क्लोज पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग। तो अब उनके बीच में वो देखने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसके मदर फादर मिल जाएं, लेकिन वो क्या देखता है, इन लोगों के बीच उसके मदर और फादर का कोई भी साइन नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, जो लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था, वो बस इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे उनके इंजॉय के लिए बात की जा रही है कि लोग आपस में बात कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कहीं मिल नहीं रहे। अब वो इन लोगों की भीड़ में भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स आसपास भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine मतलब क्या होता है, टेम्पल, जहाँ पे जो रिलीजियस प्लेस होता है उसे बोलते हैं श्राइन। अब वो दोबारा से भागने लगा। इस टाइम वो कहाँ भागा, अब वो भागा श्राइन की तरफ, एक टेम्पल की तरफ भागा, जो कि काफ़ी क्राउडेड लग रहा था। तो उसे लगा कि हो सकता है बहुत क्राउडेड प्लेस है, हो सकता है यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हो। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. अब क्या हुआ, उसने क्या देखा, every little inch of space मतलब कि उस श्राइन में जो भी जगह थी, जितनी भी जगह थी, हर जगह लोग ही लोग थे, उसमें ज़रा भी जगह नहीं थी। लेकिन बच्चे ने उसकी परवाह नहीं करी, वो लोगों के पैरों के बीच से जगह बना बना के निकलने लगा। और वो धीरे धीरे सुबकियाँ लेते हुए क्या बोल रहा था, मदर फादर, क्योंकि उसे अपने मदर फादर से मिलना था, क्योंकि वो खो चुका है। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. लेकिन क्या होता है, जैसे ही टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है, जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। जैसे आपने देखा होगा, जो मंदिर रहता है वो जब आप चढ़ते हो मंदिर में, या जो मंदिर का जो गेट होता है वहाँ पे तो सीढ़ियाँ जैसे वहाँ पे तो कम भीड़ रहता है, लेकिन जो मंदिर का मेन गेट होता है तो वहाँ पे आप देखते हो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। men jostled each other, और लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। heavy men with flashing murder eyes and hefty shoulder, और जो लोग हैं, जो मैन हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और उनकी आइज़ से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, और उनके शोल्डर्स क्या हैं, लार्ज एंड हैवी हैं। तो यहाँ पे बच्चे के नज़रिए से ये चीज़ें बताई जा रही, क्योंकि बच्चा छोटा सा है और जो लोग हैं बड़े हैं, तो उसके लिए ऐसे लग रहा है कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डरावने हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये लार्ज हैं, ये हैवी हैं, ये फुल ऑफ एंगर है। मर्डर साइज लग रही है बहुत बच्चा यहाँ पे, क्योंकि टेरिफाइड है, तो उसकी साइकोलॉजी से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ का माहौल मंदिर का कैसा है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। थ्रस्ट अवे मतलब रास्ता बनाना। अब जो बच्चा है, पुअर चाइल्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वो बच्चा अब इस समय पेरेंट्स के साथ नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो अब
उन लोगों के बीच से अपना रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हैं उस बच्चे के आगे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको नॉक कर रहे हैं, उसको अपने पैरों से हिट कर दे रहे, तो वो बच्चा इधर उधर चला जा रहा है। ब्रूटल मूवमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे क्रूअल की बात की जा रही है, क्योंकि लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग उसे श्राइन की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको और धक्का दे रहे हैं। He might have been trampled मतलब crushed मतलब दब जाना, underfoot, तो पैरों तले वो बच्चा दब सकता था। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, लेकिन क्या कह रहा है राइटर कि अगर उस बच्चे ने तेज़ आवाज़ में नहीं चीखा होता, तेज़ आवाज़ में उसके मुंह से उसके माउथ से तेज़ आवाज़ अगर ना निकली होती फादर मदर की, तो वो बच्चा उस भीड़ से कुचल ही जाता। A man in the surging crowd heard his cry. अब यहाँ पे सर्जिंग मतलब क्या है, मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। जो भीड़ है वो क्योंकि आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो जो भीड़ है उसी बीच से एक मैन ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी, उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। और उस मैन ने बहुत मुश्किल से उस बच्चे को उठाया। बेंडिंग मतलब झुकते हुए, क्योंकि भीड़ में वो बच्चा है, तो उस मैन ने झुकते हुए इस बच्चों को अपनी आर्म्स में उठा लिया। अब क्या होता है, तो यहाँ पे इस श्राइन वाले इंसिडेंट से, श्राइन वाले जो चीज़ें होती हैं उससे भी क्वेश्चन फ्रेम होती हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ से आप मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन है, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हाउ वाज द चाइल्ड लॉस्ट इन द फियर, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट विद हिम, व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर। तो वहाँ पे आपसे ये टेम्पल वाली से जो चीज़ें हुई है वो आपको मेंशन करना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. Steer clear मतलब move away, मतलब बाहर निकलना। अब उस मैन ने जब उस बच्चे को भीड़ से बाहर निकाला तो उससे क्या पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब जब बच्चे ने देखा कि कोई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत सिंपैथी वाले वॉइस में बात कर रहा है, तो बच्चा रोने लगा और तेज से रोने लगा। क्या बोला वो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। सूद मतलब चुप कराना, पैसिफाई करना। अब जब मैन ने उस बच्चे को देखा तो उसे भी शायद समझ में आ गया कि वो बच्चा खो चुका है, तो अब वो उसे झूले के पास ले जाते हैं। क्या बोलते हैं, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, कि क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। तो जब वो झूले के पास पहुंचा तो उसने बहुत जेंटली पूछा, बहुत प्यार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब वो चाइल्ड जो है वो और तेज चिल्लाने लगा, और तेज वो रोने लगा, क्योंकि वो पहले धीमे धीमे रो रहा था, लेकिन जब उसने सुना उस मैन की आवाज़ तो वो और तेज से रोने लगा, और उसने क्या कहा कि मुझे तो बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो अब मैंने जब देखा कि बच्चे को झूले में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अब कहाँ पहुँचे, वो उस प्लेस की तरफ पहुँचे जहाँ पे स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट प्ले कर रहा था, और एक कोबरा, एक स्नेक उस पर डांस कर रहा था। तो अब उसने क्या बोला, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। अब उसने बच्चे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बच्चे उस नाइस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों को अपनी फिंगर से बंद कर लिया और क्या कहो तेज से चिल्लाने लगा। डबल पिच स्ट्रेन मतलब
बहुत तेज़ी से बहुत लाउड वॉल्यूम में वो क्या कहने लगा कि मुझे अपने मम्मी पापा बस चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे का जो एटीट्यूड है अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड होने के बाद वो एकदम चेंज हो गया है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं दे आर द मोस्ट लवेबल टू अ चाइल्ड। इट डजेंट मैटर दैट दे आर स्ट्रिक्ट, दे आर डिसिप्लिनेरियर, दे आर लिबरल और नॉट, बट दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट फिर भी जब बच्चे को ये पता चलता है कि वो उनसे बिछड़ गया है तो उसे और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जिसमें वो पहले इंटरेस्टेड था। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि उसे स्वीट्स चाहिए थी, जैसे कि उसे बलून्स चाहिए थे, अब उसे जो फ्लूट म्यूज़िक, अब उसे किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अब उसे केवल उसके पेरेंट्स ही चाहिए जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है उसकी लाइफ में। अगर पेरेंट्स होते उसके पास तो उसे सेफ महसूस होता, उसे सिक्योर महसूस होता, लेकिन अब उसके पास पेरेंट्स नहीं है तो उसे वो सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो उसे नहीं आ पा रही है, उसे जो प्रोटेक्शन की फीलिंग जो है वो नहीं आ पा रही है। इसीलिए वो चाह रहा है कि उसके मम्मी पापा उससे तुरंत मिल जाएं। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. अब क्या होता है, अब वो मैन उसे बलून्स के पास ले जाता है, ये सोचते हो कि शायद हो सकता है उस बलून्स के जो कलर हैं वो उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें। Would you like a rainbow colored balloon? क्या पूछता है? He persuasively asked, रिक्वेस्ट करता है, उसे परसुएट करता है कि क्या तुम्हें वो रेनबो कलर्ड बलून चाहिए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. लेकिन उस बच्चे ने अपनी नज़रें ही हटा ली, जो बलून्स थे उनसे अपनी नज़रें ही हटा ली और वो सुबकियाँ लेने लगा। क्या कहने लगा? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बलून्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अब उसे बलून्स में भी इंटरेस्ट नहीं है। The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Bore मतलब carried। अब वो मैन अभी भी बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो कहाँ ले गया? जहाँ पे वो फ्लावर सेलर बैठा था। अब क्या बोल रहा है ये मैन? Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब क्या कह रहे बच्चे? देखो, वो देखो नाइस फ्लावर्स, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक गार्लैंड दूँ? क्या तुम एक गार्लैंड पहनना चाहते हो अपने नेक के चारों तरफ? तो अब क्या होता है? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। लेकिन अब उस चाइल्ड ने अपनी नोज ही हटा ली, क्योंकि यहाँ पे मैन ने बोला कि उन फ्लावर को स्मेल करो, तो चाइल्ड ने अपनी नोज हटा ली एंड रीइटरेटेड मतलब रिपीटेड हिज सॉन्ग। तो अब दोबारा से वो रोने लगा। क्या कहने लगा? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब क्या मैन सोचने लगा? मैन ये सोचने लगा कि जो उसके साथ एक बच्चा है, डिसकंसोलेट चार्ज मतलब जो कंसोलेट नहीं है, जो अनहैप्पी है। चार्ज यहाँ पे क्योंकि उस मैन ने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली है, तो यहाँ पे चाइल्ड की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे अब उस मैन ने उस बच्चे को हंसाने के लिए, उस बच्चे को खुश करने के लिए सोचा कि उसे स्वीट्स दिलाई जाए। सो द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। तो अब वो मैन उसे स्वीट शॉप पे ले जाता है। क्या कहता है? व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? अब वो क्या बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या स्वीट्स चाहिए? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो बच्चा अपनी नज़रें हटा लेता है, उन मिठाइयों से अपनी नज़रें हटा लेता है और वो रोने लगता है। फिर क्या कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। सो हमने क्या देखा? दैट बिफोर सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट द चाइल्ड वॉज वेरी मच हैप्पी, ही वॉज एक्साइटेड, he got attracted by the things that he saw in the fair. For example, he saw sweet meat, he saw flower seller, he saw snake charmer, he saw balloon seller, he saw roundabout. So as well as whatever things that he saw in the fair, he was attracted by the things. As well as when he was coming to the fair, on the way he saw so many things like toys and the butterflies, dragonflies. He was attracted by those things that he was lagging behind from his parents.
But the moment that he realized that he was not with his parents are not all around him, and he is lost in the fear, the interest is gone. The interest in the materialistic thing is vanished, wiped out, and now the only thing that the child is interested in, that is to be reunited with his parents. Because if he will be his parents, he will enjoy, he will be happy, he will be secured and safe. But now as he is not with his parents, he wants to meet them as soon as possible. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हमें बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, हमें बहुत सारी वर्ल्डली चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वर्ल्डली प्लेजर्स हमें चाहिए होते हैं. लेकिन हमारे जब पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते तो रियल वैल्यू हमें उनकी तब पता चलती है. तो यहाँ पे यही एक यूनिवर्सल थीम है जो हमें राइटर स्टोरी के थ्रू ये देना चाहते हैं. तो ये आप सबके लिए भी एक मैसेज है. क्या मैसेज है? दैट वी शुड अप्रिशिएट व्हाट वी हैव एंड नॉट बी ग्रेडी फॉर मोर. कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे वैल्यू करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा के लिए हमें नहीं ग्रीडी होना चाहिए. डोंट थिंक टू गेट मोर. When we lose something we love, only then we realize the real value of it. क्योंकि जब हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं जिनको हम उतना वैल्यू नहीं करते, उतना हम उनको प्रेफर नहीं करते, उनको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जब वो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती तब हमें उसकी रियल वैल्यू पता चलती है. Our parents love us and without them everything else has no value. For example, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है जिनके बिना हम कुछ भी नहीं, वो कौन है? पेरेंट्स. अब वो हमारे एक बैकबोन है, और बहुत बार हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उन पे ध्यान ही नहीं दे पाते. तो अगर हमारे पेरेंट्स ही हमारी लाइफ में नहीं होंगे तो फिर तो हमारे पास कोई भी वैल्यूएबल ऐसा चीज़ नहीं है. तो यही कहना चाहते हैं राइटर कि हमारे पेरेंट्स के बिना हम कुछ भी नहीं, इसलिए उनको वैल्यू करें, आप उन्हें लव करें, उन्हें आप सपोर्ट करें, बजाय कि बाकी चीज़ों में उलझने के. Your parents may not be perfect but they are the most precious gift God has ever given you. तो हमें इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स परफेक्ट ना हो सकता है, हमारे पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हों, थोड़ा डिसिप्लिनरी हों, हो सकता है वो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल ना करते हों, लेकिन जैसे भी हैं हमारे पेरेंट्स वो हमारी लाइफ के बेस्ट गिफ्ट हैं, बेस्ट पर्सन है हमारी लाइफ के. So this was all about the story. I hope that you like the video. If you like the video, please hit the like button and share your feedback and suggestion through your comments. Those who have not subscribed the channel yet, please subscribe and press the bell icon for getting the latest notification. Thank you all.